دوستو کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ آخر اتہاس میں وہ کون سا خاص وقت تھا کہ جب ہمارا یہ ہندوستان پوری ہی دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہوا کرتا تھا؟ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا، سونے کی چڑیا تھا، یہ بات تو آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ یہ سونے کی چڑیا تھا کب؟ آخر وہ کون سا دور تھا کہ جب ہندوستان کی آرمی پوری دنیا میں سب سے بڑی اور سب سے طاقتور ہوا کرتی تھی؟ تو دوستو ہمارے ان سارے ہی سوالوں کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب ہے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا، دا گریٹ مغل امپائر۔ بھارت کے اتہاس کا ایک ایسا بادشاہ کہ جس کو آپ پسند کر سکتے ہیں، ناپسند کر سکتے ہیں، جس سے آپ نفرت بھی کر سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں کر سکتے تو وہ ہے اس انسان کو اگنور کرنا، کیونکہ اس ایک انسان نے بھارت کے اتہاس پر جو پربھاؤ، جو انفلوئنس چھوڑا ہے وہ اتنا زیادہ اور اتنا ہیوی ہے کہ جس کو نہ تو کسی بھی طریقے سے بھلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اتہاس کی کتابوں سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ پہلے نظر ڈالیں تھوڑا پرسنل لائف پر، تو اورنگزیب عالمگیر کا جو اصلی نام تھا وہ محی الدین محمد تھا، اور ان کا جنم 1618 میں آج کے دور کے گجرات میں ہوا تھا۔ ماں باپ کی بات کریں تو والد وہ تھے کہ جنہوں نے تاج محل بنوایا تھا، اور ماں وہ تھیں کہ جن کے لیے تاج محل بنوایا گیا تھا، مطلب کہ شاہجہاں اور ممتاز محل۔ اورنگزیب عالمگیر نے 31 جولائی 1658 کو اپنے فادر شاہجہاں کے بعد چھٹے مغل بادشاہ کے طور پر گدی سنبھالی، اور پھر یہ گدی 1707 مطلب اگلے 50 سال تک صرف اورنگزیب عالمگیر کے پاس ہی رہی، اور اس طرح سے پورے ہی اتہاس میں کسی بھی ایک شاسک کے دوارا ہندوستان پر سب سے لمبے وقت تک راج کرنے کا ریکارڈ بھی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے کھاتے میں گیا، کیونکہ کوئی بھی شاسک اتہاس میں نہ تو پہلے ایسا کر سکا تھا اور نہ ہی اورنگزیب عالمگیر کے بعد میں ایسا ہو سکا۔ ویسے یہ گدی حاصل کرنے کی کہانی بھی بڑی ہی عجیب و غریب اور خون سے رنگی ہوئی ہے، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے علاوہ اس گدی کے شاہجہاں کے 3 اور بیٹے بھی دعوے دار تھے، اور یہ چاروں ہی بھائی آئیڈیولوجیکلی مطلب کہ سوچ وچار کے معاملے میں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ تھے۔ پرسنلی شاہجہاں کی یہ خواہش تھی کہ ان کا بیٹا دارا شکو گدی پر بیٹھے، اسی لیے بہت سارے اتہاسکار تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ اورنگزیب سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے بہت کم عمر سے ہی بادشاہ شاہجہاں نے یہ کوششیں شروع کر دی تھیں کہ اورنگزیب عالمگیر کو سلطنت کی راجدھانی اور محل سے جتنا زیادہ ہو سکے دور ہی رکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں اورنگزیب عالمگیر کا انفلوئنس راجدھانی یا پھر محل میں بڑھ نہ سکے، اس سے الٹ دارا شکو کا یہ انفلوئنس، یہ پربھاؤ بڑھتا چلا جائے، اور اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے ہی بہت کم عمر سے ہی اورنگزیب عالمگیر کو کبھی تو مشکل سے مشکل علاقوں میں ملٹری کیمپین کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، تو کبھی ایسے علاقوں میں ذمہ داریاں دی جاتی تھیں اور گورنر لگا دیا جاتا تھا کہ جو آگرہ اور دلی جیسے علاقوں سے کافی دور ہوا کرتے تھے۔ مگر ساتھیوں ہوا یہ کہ شاہجہاں اور دارا شکو کے لیے یہی چیز مصیبت، جبکہ اورنگزیب عالمگیر کے لیے یہی چیز وردان ثابت ہوئی۔ وہ اس لیے کیونکہ اورنگزیب عالمگیر نے شروعاتی دور سے ہی جو زیادہ سے زیادہ وقت اپنی آرمی کے ساتھ گزارا اور مشکل سے مشکل علاقوں میں جو کیمپین کی، اس چیز نے اورنگزیب عالمگیر کو ملٹری کے فیلڈ میں جینیس بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1658 میں جب فائنلی گدی حاصل کرنے کے لیے جنگ شروع ہوئی تو پھر ان بھائیوں میں سے کوئی بھی اورنگزیب عالمگیر کے سامنے ٹک ہی نہیں سکا۔ کسی نے بڑے بڑے پیترے اپنائے تو کوئی باہر سے فوج لے کر آیا، تو کسی کے پاس شاہی فوج کا پورا سپورٹ تھا، سارے ہتھیار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اورنگزیب عالمگیر نے باری باری سے اپنے سارے ہی بھائیوں کو ہرا کر ختم کر دیا، اور اس طرح سے اگلے 50 سال تک لگاتار قائم رہنے والا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا دور شروع ہوا۔ ویسے ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ گوگل یا پھر چیٹ جی پی ٹی جیسی کسی بھی جگہ پر جا کر یہ سوال پوچھیں گے کہ بھارت کے پورے اتہاس کا سب سے طاقتور بادشاہ کون تھا، اسٹرانگسٹ ایمپرر کون تھا، تو سیدھا سا جواب آپ کو اورنگزیب عالمگیر کے ہی روپ میں ملے گا۔ اس کے پیچھے کئی obvious ریزنز بھی ہیں، جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے سب سے لمبے وقت تک گدی سنبھالی، اور اس کے علاوہ اسی دور میں ہی مغل امپائر کی جو سیمائیں تھیں، جو سرحدیں تھیں، وہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہوئیں کہ اتنے بڑے علاقے پر یہ راج قائم ہو گیا تھا کہ جتنے بڑے علاقے پر پہلے بھارت کے کسی بھی شاسک نے راج نہیں کیا تھا۔ ایون آج کے دور میں میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر ہم جس اکھنڈ بھارت کے کانسیپٹ کے بارے میں پڑھتے، سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں، وہ اکھنڈ بھارت بھی اگر کسی دور میں واقعی پاسبل ہوا تھا تو وہ دراصل اورنگزیب عالمگیر کا یہی دور تھا کہ جب ہندوستان کی سیمائیں آج کے افغانستان کے کابل سے لے کر نیچے تمل ناڈو تک پھیلی ہوئی تھی۔ ملٹری تو سب سے بڑی اور سب سے اسٹرانگ تھی ہی، جبکہ اکنامی کا بھی حال یہ تھا کہ پوری دنیا کی جو اکنامی تھی اس میں سے 25% شیئر تو صرف اور صرف مغل امپائر کا تھا۔ مطلب پوری دنیا میں جتنی دولت موجود تھی اس میں سے 25% کے قریب دولت اس دور میں صرف ہندوستان کے اسی مغل امپائر کے پاس موجود تھی۔ دنیا کے پورے ٹریڈ پر بھی بھارت کی ہی توتی بولا کرتی تھی، چاہے ایگریکلچر کا فیلڈ ہو، ٹیکسٹائلز ہو، اسپائسز ہو، سلک ہو، ہر چیز میں ہی سب سے آگے بھارت کھڑا ہوا نظر آتا تھا۔ اب ویسے تو ہمیشہ اورنگزیب عالمگیر کو بھی بالکل ویسے ہی یاد کیا جانا چاہیے تھا کہ جیسے دنیا کے بڑے بڑے مشہور یا پھر ہندوستان کے بھی بڑے بڑے اور مشہور حکمرانوں کو یاد کیا جاتا ہے، مطلب ان کی 5 کوالٹیز یعنی
अच्छी चीजें गिनाई जाती और 5 बुरी चीजें गिनाई जाती। मतलब कहा जाता कि इनके दौर में ये काम अच्छे हुए और इनके दौर में ये काम गलत हुए। लेकिन बादशाह औरंगजेब आलमगीर के केस में तो कुछ और ही चल रहा है। खास तौर से पिछले कुछ सालों से तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर खूब किया गया है। हर साल सिनेमा हॉल में भी एक न एक ऐसी नई फिल्म रिलीज कर ही दी जाती है जिसमें विलन का नाम होता है बादशाह औरंगजेब आलमगीर, और फिर पूरी फिल्म में बस यही मैसेज दिया जाता है कि ये जो औरंगजेब आलमगीर नाम का बादशाह था, इसके अंदर तो अगर 10 चीजें थीं तो वो सारी बुरी की बुरी थी। इस इंसान के अंदर तो कोई भी खूबी हो ही नहीं सकती थी। और इससे उलट इसके मुकाबले में उस दौर में खड़े होने वाले जितने भी लोग थे उनके अंदर तो सारी की सारी खूबियां थीं, कोई बुराई हो ही नहीं सकती थी। और साथ ही में इस पूरे मैटर को फिर हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जाता है ताकि जो मेन मकसद है मतलब कि नफरत फैलाना वो कामयाब हो सके। लेकिन अगर आप लोग इन तमाम चीजों की छानबीन लॉजिकल वे में करेंगे और इन तमाम चीजों को ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि जो हमको बताया जाता है, बल्कि वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। और वो जो सब कुछ था वो अपने जाती फायदे के लिए, अपनी सल्तनतों और अपनी रियासतों के लिए या अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए था। मिसाल के तौर पर बादशाह औरंगजेब आलमगीर के ऊपर अपने दौर में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने का हुक्म देने का इल्जाम लगाया जाता है। और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर कुछ मंदिरों को तोड़ा गया था। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वो चाहे औरंगजेब आलमगीर हो या दुनिया का कोई भी हुक्मरान हो, उसकी तरफ से किसी भी रिलीजियस प्लेस को, किसी भी धार्मिक जगह को तोड़ना या उसको नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन एक अपराध, एक गुनाह तो ये भी है कि जो लोग सोशल मीडिया पर आपको ये सब कुछ बता रहे होते हैं वो दरअसल ये नहीं बता रहे होते हैं कि टूटने वाले मंदिरों से बड़ी लिस्ट तो उन मंदिरों की है कि जिनको या तो औरंगजेब आलमगीर की तरफ से जमीन दान की गई थी, या फिर उसको बनाने के लिए बहुत बड़ी रकम दी गई थी, या फिर उसकी फंडिंग की गई थी, जिसमें बनारस, वृंदावन और गुजरात जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। और तो और वो लोग आपको ये भी नहीं बता रहे होते हैं कि ऐतिहासिक किताबों में तो कुछ ऐसी खास मस्जिदों का भी जिक्र है कि जिनको औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर तोड़ा गया था। हमें अंदाजा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान मंदिर तुड़वाता भी है, बनवाता भी है, मस्जिद तुड़वाता भी है और उससे ज्यादा मस्जिदें बनवाता भी है। तो दोस्तों, इस सारी कंफ्यूजन का एक ही जवाब है और वो है पॉलिटिकल मोटिव। दरअसल हमको पता होना चाहिए कि उस दौर में आज की तरह ये जो मंदिर हुआ करते थे ये सिर्फ पूजा करने की जगह ही नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये तो पावर सेंटर भी हुआ करते थे। मतलब इनको पॉलिटिकल वे में भी इस्तेमाल कर लिया जाता था। इसीलिए जिन जिन इलाकों में या जिन खास मंदिरों को उस दौर में निशाना बनाया गया था उनके बारे में ऐतिहासिक किताबों में यही मिलता है कि वहाँ से या तो औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बगावत उठी थी, या फिर बगावत की तैयारी की गई थी, मतलब बगावत उठने वाली थी, या फिर औरंगजेब आलमगीर को ऐसा कुछ होने का डर था, या फिर कभी बादशाह औरंगजेब आलमगीर का कोई बड़ा दुश्मन वहाँ पर जाकर छिप गया था। बिल्कुल ऐसा ही मामला कुछ मसाजिद के केस में भी नजर आता है। जैसा कि इतिहासकारों ने गोलकोंडा की जामा मस्जिद का जिक्र किया है कि वहाँ के जब अपने दुश्मन हुक्मरान से बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने निपटने का फैसला किया, और जो हुक्मरान दरअसल धर्म से मुस्लिम ही था और जिसके बारे में बाद में औरंगजेब आलमगीर को ये भी खबर मिली कि इसने अपना बहुत सारा खजाना जमीन के नीचे दफनाकर उसके ऊपर जामा मस्जिद को तामीर कर दिया है, तो फिर यहाँ के इलाके को फतह करने के बाद, यहाँ के इलाके को कंट्रोल में लेने के बाद औरंगजेब आलमगीर के इशारे पर इस जामा मस्जिद को भी तोड़ा गया था। जबकि हमें पता होना चाहिए कि ये वही बादशाह था कि जिसके इशारे पर भारत के अलग अलग इलाकों में बेशुमार मस्जिदें तामीर भी हुई थीं। बिल्कुल ऐसे ही बुरहानपुर की एक शेख पीर मोहम्मद मौस का भी जिक्र मिलता है, जिसको बादशाह औरंगजेब आलमगीर की फौज ने पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से निशाना बनाया। और तो और आप में से शायद बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जिस मराठा एम्पायर को मुगल एम्पायर के सामने खड़ा करके फिर फिल्म्स के अंदर हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाता है, उस मराठा एम्पायर की तरफ से भी इतिहास में कई मंदिरों को निशाना बनाए जाने का जिक्र मिलता है। और जाहिर है ये सब कुछ भी अपने अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए हो रहा था। मिसाल के तौर पर 1740 से लेकर 1750 के बीच मराठा एम्पायर की तरफ से जो बंगाल में रेड्स की गई थीं, उन रेड्स में कुछ मंदिरों को लूटने, उनको निशाना बनाने या उनको डिस्ट्रॉय करने का जिक्र मिलता है। बल्कि अभी रुकिए, इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात आपको बता देते हैं कि किसी दौर में जब मराठा एम्पायर हैदर अली और टीपू सुल्तान की जो मैसूर रियासत थी उस पर रेड्स कर रहा था, मतलब उसको फतह करने की या उसको हराने की कोशिश कर रहा था, तो उस दौर में मैसूर रियासत के भी कई मंदिरों को मराठा एम्पायर की फौजों के द्वारा निशाना बनाया गया था। मतलब सोचिए कि ये कितनी अजीब बात है कि दो मुस्लिम हुक्मरान मतलब के हैदर अली और टीपू सुल्तान को नीचा दिखाने या उनको हराने के लिए उनकी रियासत के मंदिरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा था। दूसरी तरफ ये दो हुक्मरान अपनी रियासत और अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए इन मंदिरों की हिफाजत कर रहे थे। साथियों, बिल्कुल इसी तरह से ही ये
بھی दावे किए जाते हैं कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में बहुत सारा भेदभाव होता था, मतलब पूरे भारत में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही चल रहा था, उसके अलावा तो मानो कुछ था ही नहीं। जबकि हकीकत तो ये है कि उस दौर में बादशाह औरंगजेब आलमगीर के महल में या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो बड़ी बड़ी पोजीशंस थी, जो बड़ी बड़ी गद्दियां थी, उन पर बेशुमार हिंदू लोग बैठे हुए थे। खुद अंग्रेज और हिंदू इतिहासकारों ने भी ये नंबर लगभग 30 से 35% के करीब माना है, जो मुगल सल्तनत के उस दौर से भी ज्यादा था कि जिस दौर में गद्दी पर एक सेकुलर छवि रखने वाला बादशाह अकबर बैठा हुआ करता था। उस दौर की मुगल एम्पायर की जिस बड़ी इकोनॉमी के बारे में हमने शुरू में जाना, क्या आप लोगों को पता है कि औरंगजेब आलमगीर के दौर में मुगल एम्पायर की इस बड़ी इकोनॉमी की देखभाल कौन कर रहा था? मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? तो इसका सीधा सा जवाब है राजा रघुनाथ रॉय। हाँ दोस्तों, एक हिंदू। इतना ही नहीं, बाकी पोजीशंस और गद्दियों को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि मिलिट्री जो किसी भी सल्तनत की सबसे अहम चीज हुआ करती थी, उस मिलिट्री के भी बड़े बड़े पदों पर बेशुमार हिंदू लोग बैठे हुए थे। औरंगजेब आलमगीर की पूरी जिंदगी में, पूरे दौर में, वो चंद मिलिट्री कमांडर्स और वो चंद मिलिट्री जनरल्स के जो उस दौर में सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे ज्यादा होशियार माने जाते थे और जिनके ऊपर औरंगजेब आलमगीर ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उनमें कई नाम हिंदू हुआ करते थे, जिसमें राम सिंह, राजा राम सिंह फर्स्ट, राजा राम सिंह टू और महाराजा शाहू सिंह जैसे बेशुमार नाम शामिल हैं। जिस मिलिट्री कमांडर ने किसी दौर में शिवाजी को कैप्चर करके औरंगजेब आलमगीर के महल में पेश किया था, वो भी दरअसल इन्हीं हिंदू मिलिट्री कमांडर में से एक इंसान था। मराठा एम्पायर के खिलाफ जो पूरी कैंपेन चलाई गई थी और बड़े बड़े इलाकों को जीतकर जो मुगल एम्पायर में मिलाया जा रहा था, उसमें ये सारे हिंदू मिलिट्री कमांडर्स भी सबसे अहम रोल प्ले कर रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से मराठा एम्पायर के इतिहास में भी आप लोगों को मुस्लिम मिलिट्री कमांडर्स का जिक्र मिल जाएगा कि जो मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, और ऐसी फौजों का भी जिक्र मिल जाएगा कि जो थी तो मुस्लिम लेकिन मराठा एम्पायर के साथ खड़ी हुई थी या फिर इनके अंदर मर्ज होकर ही मुगलों के खिलाफ लड़ रही थी। आखिर में जहाँ तक मामला बचता है अपने भाइयों को कत्ल करके गद्दी हासिल करने का, तो जाहिर सी बात है ये वैसे तो बहुत खतरनाक चीज है, और जब भी हम लोग सुनते हैं तो आज के दौर में तो खास तौर से हम लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन मामला ये है कि उस दौर में ये चीज कोई यूनिक नहीं थी, बल्कि बाकी सल्तनतों, बाकी हुकूमतों और बाकी एम्पायर्स में भी गद्दी हासिल करने के लिए यही सब कुछ चल रहा था। वो चाहे मुस्लिम दुनिया की ही सुपर पावर माना जाने वाला ऑटोमन एम्पायर हो, या फिर भारत की जमीन पर ही हजारों साल पहले वजूद रखने वाला वो मौर्य एम्पायर हो, कि जिसके हुक्मरान, जिसके शासक अशोका, कि जिसको आमतौर पर अशोका दी ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके शासक अशोका ने गद्दी हासिल करने के लिए इतिहासकारों के मुताबिक अपने लगभग 99 भाइयों को कत्ल कर डाला था। अब जाहिर है इस नंबर के आगे तो औरंगजेब आलमगीर जैसे हुक्मरान दूर दूर तक कहीं नहीं टिकते हैं। वैसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के इतिहास में जिस एक हुक्मरान को बादशाह औरंगजेब आलमगीर की टक्कर का माना जाता है, या जिसको औरंगजेब आलमगीर के मुकाबले में रखा जाता है, वो हुक्मरान भी कोई और नहीं बल्कि यही अशोका दी ग्रेट हैं। बल्कि बेशुमार ऐसे लोग जो दिन रात सोशल मीडिया